اسے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے بچا لیا ہے۔ اللہ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام جو فاطمہ رکھا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سے جو محبت کریں گے، فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ سے کیا کر لیا ہے؟ بچا لیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر کچھ نہیں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھ لیں، ادھر آپ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کریں اور ادھر اصحاب رسول کی گستاخیاں کریں۔ کوئی اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دعوے ہیں۔ اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر اصحاب رسول سے بغض رکھتا ہے، یا اصحاب رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے، یاد رکھ لیں ان کو کسی کی شفاعت ملے گی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بغض رکھنے والا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت کر دے؟ وہ اصحاب جنہوں نے اپنی جان حضور پہ قربان کی، اپنا مال جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا، اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا، اور پھر بھی کہا کچھ بھی نہیں قربان ہو سکا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد پھر بھی خواہش تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور عطا فرماتا اور حضور پہ جو ہے وہ ہم قربان کر دیتے۔ تو اگر کوئی شخص ان کے ساتھ بغض رکھے اور یہ دعوے کرے میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہوں، تو یاد رکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نہ ملے گی اور نہ ہی اہل بیت اطہار کی اسے شفاعت۔ میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بات ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کرامی ہے، بیان کرتے ہیں قال حب آل محمد یوم خیر من عباد السنہ۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے نفلی عبادت اس کے اندر ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ان کا بغض آ جائے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی بغض آ جائے، محبت آئے گی تو پھر ان کی شفاعت بھی ملے گی، ان کا پیار دل میں ہوگا تو ان کی شفاعت بھی ملے گی۔ اور فرمایا جو اسی محبت پر فوت ہوا، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے، تو کسی حالت پر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اگر کسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، اور اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول سے وہ محبت کرنے والا ہے، تو فرمایا اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت زید بن ارقم اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا۔ 5 چیزیں انہوں نے فرمایا ایسی ہیں اگر کسی شخص کو وہ نصیب ہو جائیں تو پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ آخرت کی کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے، آخرت کے لیے کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نمبر 1 فرمایا کسی شخص کو نیک بیوی مل جائے۔ نیک بیوی ہے، اب ظاہر ہے نیک بیوی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو خاوند جب دیکھے گا اچھا یہ نماز پڑھتی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، خود بخود اسے رغبت حاصل ہوگی، اس سے ذہن میں بات آئے گی کہ میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، میری بیوی نماز پڑھتی ہے، پھر وہ عمل کی طرف اس کی بھی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے یہ 5 چیزیں مل جائیں گی پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے آخرت کی تیاری جو ہے
اس کی तौफीक अता फरमा देता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? फरमाया एक तो नेक बीवी है और दूसरे नंबर पे फरमाया नेक औलाद है। क्या है? नेक औलाद। अगर किसी शख्स को नेक बीवी मिलती है साथ नेक औलाद भी है, अब जाहिर है जब बच्चा नमाज पढ़ेगा ना तो बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, शर्म आएगी उसे। बच्चा नमाजी हो बाप नमाजी ना हो, शर्म आएगी। एक न एक दिन उसके ज़हन में ज़रूर आएगा, अच्छा बेटा नमाज पढ़ता है तो चल यार तू ही पढ़ ही ले। तो आखिर वो बच्चे नेक होने की वजह से वालिद को भी जो है वो तरगीब हासिल हो जाएगी और वो भी नेक अमल करना शुरू कर देगा। तो फरमाया 2 चीज़ें हो गई, एक किसी को नेक बीवी मिली और नेक औलाद मिली, और तीसरे नंबर पर फरमाया लोगों के साथ हुस्न मुआशरत करता है, हुस्न अखलाक, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत का मामला है, किसी को तकलीफ नहीं भेजा देता, किसी को तंग नहीं करता, किसी को गालियां नहीं देता, किसी का माल हड़प नहीं करता। अच्छा अखलाक है, हुस्न अखलाक है, किसी को परेशान नहीं करता। तो अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 3 चीजें हो गई, और फरमाया और अपने मुल्क में उसे रोजगार भी मिला हुआ है। नेक बीवी है, नेक औलाद है, तीसरे नंबर पे अच्छा अखलाक है, लोग उसे खुश हैं। तो चौथे नंबर पे फरमाया अल्लाह ने रिज़्क़ भी उसे अपने मुल्क में दिया हुआ है। और 5वें नंबर पे अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो शख्स जो है वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है। 5 चीजें जिसके अंदर जमा हो जाए, मेरे अलैहिस्सलाम ने गारंटी अता फरमाई, फरमाया वो आखिरत के अमल का तारिक नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमा देता है। जिसे ये 5 चीजें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है, और उन 5 चीजों में एक हुजूर की औलाद की मोहब्बत भी मौजूद है। मेरा अलैहिस्सलाम की हदीस से मार गया है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं दरख्त हूँ, मैं क्या हूँ? दरख्त हूँ। फातिमा फरमाया इसके फल की इब्तदाई हालत है। मेरी बेटी, ये मैं दरख्त हूँ और मेरी बेटी इस दरख्त का जो फल होता है उसकी इब्तदाई हालत मेरी बेटी फातिमा है। और फरमाया अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली इसके फूल को मुंतकिल करने वाले हैं इस दरख्त के, और फरमाया हसन और हुसैन इस दरख्त के फल हैं। और आगे क्या इरशाद फरमाया, और फरमाया अहले बैत से मोहब्बत करने वाले इस दरख्त के वर्क हैं, पत्ते हैं। और अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो यकीनन जन्नत में सारे इकट्ठे होंगे, और मैं साथ ही इकट्ठे होंगे, मोहब्बत करने वाले भी और अहले बैत अतहार भी। फरमाया ये सब जो है जन्नत में अल्लाह तबारक तआला जो है इन्हें इकट्ठे फरमाएगा। मेरा अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 4 शख्स ऐसे हैं क़यामत के रोज़ जिनके लिए मैं शफाअत करने वाला हूँ, फरमाया मैं मुस्तफ़ा शफाअत करूँगा 4 लोगों की। फरमाया और वो 4 लोग कौन से हैं? फरमाया पहले नंबर पे मेरी औलाद की इज्जत व तकरीम करने वाला, तो मेरी औलाद की इज्जत तकरीम करता है। दूसरे नंबर पर फरमाया उनकी हाजात को पूरा करने वाला, तो सैयद होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है ना। ज़ाहिर है जो हुजूर की औलाद है उसके ऊपर ज़कात नहीं, वो ज़कात नहीं ले सकते, तो इसलिए जो है उन्हें जो है वो तोहफ़तन हदियतन चीज़ें देनी चाहिए। फरमाया उनकी हाजात को पूरे करने वाला और उनके मामलात के लिए तगोदो करने वाला। और चौथे नंबर पर फरमाया जब वो मजबूर होकर उनके पास आए और दिलो जान से उनसे मोहब्बत करने वाला। फरमाया ये 4 लोग ऐसे हैं, फरमाया मैं मुस्तफ़ा क़यामत वाले दिन इनकी शफ़ाअत करूँगा। सामीन मोहतरम, ये अहले बैत अतहार हैं,
हुजूर की औलाद हैं, उसे मोहब्बत करें, उसे प्यार करें और झूठे दावे ना करें। सिर्फ बाद लोग झूठे दावे करते हैं। अहले बैत में अतहार ने जो अमल किया है, उनकी दिन जो है इबादत में गुजरता, रातें भी इबादत में गुजरता। ऐसी ऐसी उनकी जो है वो इबादत में वक्त गुजरता। हज़रत सी ज़ैन आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला के बारे में है, कोई शख्स कुछ मांगने के लिए आया तो आपने जो है उसे दे दिया और फिर उसे माफ़ी मांगी। कहा जी हक तो ये था कि मैं तुम्हें जाकर देता। ये सैयद थे, ये सादात थे, वो मांगने के लिए दे भी दिया और देने के बाद माफ़ी भी मांगी। कहा हक तो ये था कि जाकर देता मैं। और घर जा रहे थे, रो रहे थे। घर वालों ने कहा क्या मसला है, आप रो रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। एक हाजतमंद आया था, हाजत पूरी कर दी आपने उनकी, खुश होना चाहिए था। तो मैं नहीं, हक तो ये था कि मैं उसके पास जाता, ये जो उसने सवाल किया है इसे सवाल भी ना करने पड़ता। ये हुजूर की औलाद है। इसलिए हमारा काम क्या है, हम उनकी सीरत को पढ़ें, उनकी सारी जिंदगी आमाल करते हुए गुजरी है। याद रखें, दिन भी इबादत, रात भी इबादत, लोगों की खिदमत। ये नहीं था कि साल के बाद जो है वो चंद जिक्र कर लें और बाद पूरा साल जो है अय्याशी मारे, ना नमाज के करीब जाएं, ना ज़कात दें, ना अमाल करें। नहीं, ऐसी अगर कोई ऐसा बंदा दावा करता है, याद रख लें हुजूर की औलाद से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। कोई बंदा अगर नमाज नहीं पढ़ता, दावा करता है अहले बैत अतहार का, मोहब्बत का, झूठा शख्स है। मोहब्बत का दावा कैसे? उन्होंने तो जो है वो मुसीबतों में, परेशानियों में नमाज नहीं छोड़ी। आप घर में एसी में लेटे हुए आके नमाज नहीं पढ़ सकते, आप अमाल नहीं कर सकते, तो फिर आप झूठे दावे में झूठे हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि अहले बैत अतहार से हमारी मोहब्बत है, तो मोहब्बत ऐसे होगी जैसे उन्होंने नेक अमाल, जैसे उन्होंने जो है हक का कलमा कहा है, ऐसे आप भी हक का अलम जो है उसको बुलंद करें। तो फिर आप, हम समझेंगे कि आप जो है वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों में हुजूर